वेलकम टू कानून गुरुज। आज हमारे साथ हैं एडवोकेट आदित्य रलहन जो कि दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। Thank you so much for those, ma'am, and the team of Kanun Gurus for inviting me at this platform and briefing the people about the topics that we'll be discussing in this video. Thank you so much. We also thankful to you, and today we are going to discuss on 304A IPC. Before we start a topic, हमारे जो व्यूअर्स है आपका लिटिगेशन जर्नी है उसके बारे में जानना चाहेंगे। All right. So I have done my law from Vivekananda Institute of Professional Studies, IP University, from Delhi itself. And it was a 5-year law course. And just one thing that I wanted to mention about myself is that very in the initial days of my schooling, maybe from 7th or 8th standard, I was very much sure that I want to do law because when you are a second generation lawyer, so you see your the first generation doing things, pursuing things in that particular manner, and then how an advocate works, what reputation, what status he enjoys. So from the very beginning, I had this thing in my mind that I want to become a practicing advocate. So I completed my law and then I joined a criminal lawyer for an year, and I have practiced in district courts, majorly in district courts with him, and matters in the Delhi High Court as well. After that, I did a job with a law firm. It was a tiered law firm. I won't name the firm, but I worked there for an year, and then because I wanted a really diverse exposure, because the initial 1 year of my profession, I had sorted exposure of the district courts and then the high court as to how an hardcore litigation lawyer works. And after that, law firm, I wanted to have that law firm exposure, dealing with big clients, dealing with big matters, working on those particular big matters. So I worked with the law firm for 1 year, and then I had exposure to arbitrations, commercial cases, insolvency, and everything. And after that, I have started my independent practice now. So now I have started my independent practice, and majorly that I am dealing into is all majorly into criminal matters, matrimonial matters, and civil matters. And I have been dealing with matters all across Delhi and NCR. I've been to Sirsa, Bhiwani, Sonipat, Ghaziabad, Noida, and every court in Delhi, and almost which is accessible through Delhi. So yeah, just a budding lawyer, and that's it. That's my journey. It's quite difficult to deal in different courts and different territories. As you told me that like you appearing in Ghaziabad, Delhi NCR, Haryana also. So it's really good. It's really good to know that. So is there any important case, any achievement या ऐसा कुछ experience जो आपके litigation उसमें आपको बहुत ज़्यादा जिसने बहुत कुछ सिखाया हो? As I mentioned that I am very much new to the profession, but not that new also. So I remember the first independent matter that I dealt with. I got enrolled, and after 7 to 8 days of my enrollment, I got this matter, and it was directly a High Court matter, criminal matter in the Delhi High Court. It was a quashing matter, and I was so nervous, so nervous that first appearance, that too in the Delhi High Court. I mean, it was really a big thing for me. But yeah, I had confidence in myself, and then I believed myself that yes, I will be able to get the relief for my client, and eventually the FIR was successfully quashed on the very first date itself, and I was really happy. I got really motivated, and yes, so that was you can say, a bumping experience for my profession which motivated me to go on further. And another case was a very complex matrimonial case that is still going on. So basically, the arguments that go on in that particular case, each day I come out of the courtroom with a headache. And so these are the few experiences that, yes, they are always in my mind, and I look forward to them. Definitely, sir. And sir, आपका जो experience रहा है कि यानी within 7 days of the enrollment के 7 days में FIR क्वेश्चन के मैटर में अपीयर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यंगस्टर्स को काफी ये चीज जो है बूस्ट अप करेगी, जो भी इस फील्ड में आना चाहते हैं डेफिनेटली उनके लिए कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए ये चीज काफी हेल्प करेगी।
So now we are going to the topic. हमारा जो topic है 304A IPC, which is I mentioned earlier. तो इसमें मैं ये जानना चाहूंगी आपसे कि सर ये 304 IPC जो है ये क्या है, एंड किस तरीके का पनिशमेंट इस पर्टिकुलर सेक्शन में दिया जाता है, या क्या प्रोविजन है पनिशमेंट की? So basically, 304A talks about the death of a person which is caused by a rash or a negligent act. इस सेक्शन के अंदर बहुत सी चीजें हैं जो समझने की हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि किसी एक इंसान की डेथ हो जाए। डेथ, आपने डेथ कॉज कर दी, लेकिन ना ही आपकी इंटेंशन थी उसकी डेथ कॉज करने की, और ना ही आपको नॉलेज थी कि इस एक्ट से उस इंसान की डेथ हो सकती है। बट मेरा जो एक्ट था वो बहुत रैश था, बहुत नेग्लिजेंट था, एंड इन ऑल पॉसिबिलिटीज उस इंसान की डेथ हो जाए। सो उस सेक्शन, उन तरीके के ऑफेंसेस को कवर अप करने के लिए 304A वाज इंसर्टेड इनटू आईपीसी। सो इसकी पनिशमेंट जो है दैट एक्सटेंड्स अप टू 2 years एंड और फाइन और बोथ। सो जेल भी हो सकती है, या सिर्फ फाइन देके भी आपको कोर्ट छोड़ सकती है, दोनों ही चीजें की तरीके की आपको पनिशमेंट मिल सकती है। तो सर इतना कम पनिशमेंट क्यों, जबकि इट्स काउंट इन मर्डर, ये एक तरीके का मर्डर है, आपने किसी को मार दिया है, इसके पीछे क्या रीजन है? I beg to differ, ma'am. It's not murder, because when you are murdering someone, then you have the intent to do that and you have the knowledge of your act. कि मेरा इंटेंशन है कि मुझे इसको मारना ही मारना है, एंड देन मुझे नॉलेज है कि मेरा एक्ट है उससे किसी की डेथ हो ही जाएगी। सो दिस इज नॉट मर्डर, इट कैन नेवर बी टर्म्ड एज मर्डर। ना ही मुझे इंटेंशन है, ना ही मेरी नॉलेज है। रात को मैं गाड़ी चला रहा हूँ विद इन द स्पीड लिमिट्स, आराम से चला रहा हूँ गाड़ी, सडनली एक पेडेस्ट्रियन आ जाता है रोड पे, गाड़ी उसे हिट कर देती है। मिसफॉर्चुनेट पार्ट ये है, अनफॉर्चुनेट पार्ट बहुत ये है कि उसकी डेथ हो जाती है। सो आई कैन नेवर बी हेल्ड लायबल फॉर मर्डर। मैंने उसका मर्डर थोड़ी किया है। आई वॉज जस्ट ड्राइविंग माई कार, मैं आराम से चला रहा था रात को, कोई आ गया सड़क पे आगे से, कोई बाइक आ गई रॉन्ग साइड से, ऐसे कुछ भी है। सो दिस इज नॉट मर्डर, आई बिलीव। इसको मर्डर नहीं बोल सकते हैं। डेफिनेटली हमारे व्यूअर्स को भी ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी। रीजन बीइंग एक टेंडेंसी है, लोग इसे मर्डर में काउंट करते हैं कि अरे उसको मार दिया है तो ये भी मर्डर हो गया है। Absolute incorrect tendency of our society, ma'am. Really sorry to say that. एग्जैक्टली तो सर इतना कम पनिशमेंट, मतलब 2 years, अगर किसी इंसान की डेथ हो जाए इसके पीछे? Just as I mentioned, इतनी कम पनिशमेंट इसमें इसीलिए है बिकॉज ना ही आपको इंटेंशन है, ना ही आपको नॉलेज है। एक रैश और नेग्लिजेंट एक्ट है आपका। अब हम लॉ के अंदर रैशनेस को या नेग्लिजेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो नेग्लिजेंस एक वो चीज होती है, एक बेसिकली एक ओमिशन होता है कि आई वॉज नेग्लिजेंट इन डूइंग दैट एक्ट, सो आई वॉज ओमिटिंग अ ड्यूटी ऑफ केयर दैट अ रीजनेबल प्रूडेंट मैन वुड हैव। एंड रैशनेस इज समथिंग यू एक्ट इन अ हेस्टी मैनर, और रेकलेसली आप बहुत एक्ट करते हो। सो आई पर्सनली फील इज कि ये सब चीजें एक ह्यूमन टेंडेंसी के बियॉन्ड है, कोई इंटेंशनली नहीं करता काम। सो इसीलिए आई प्रिज्यूम दैट दिस वुड हैव बीन द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर। सो इसीलिए आई फील दैट द पनिशमेंट इज नॉट लो, बट या इट्स लेसर देन अदर ऑफेंसेस। एग्जैक्टली सर। तो ड्यूरिंग ट्रायल एंड ये मान लीजिए किसी ने ये ऑफेंस किया है, एक्यूज्ड है, एक्यूज्ड के बेल मिलने के कितने चांसेस होते हैं, और क्या ये ऑफेंस जो है वो बेलेबल है? जी बिल्कुल, ये इट्स अ बेलेबल ऑफेंस एंड द स्टैट्यूट प्रोवाइड्स कि ये ऑफेंस इन इटसेल्फ इज बेलेबल। आपको 304A में आपको बेल जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको बेल ऑटोमेटिकली मिल जाती है। इट्स अ बेलेबल ऑफेंस एंड कई कई अब एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि बेलेबल ऑफेंस में मिलना भी दो तरीके से मिलती है। एक कोर्ट से ही मिलती है, एक पुलिस स्टेशन से मिलती है। अब बहुत से लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि जब बेलेबल ऑफेंस है तो हम कोर्ट से बेल क्यों लें। सो ये एक स्टेट प्रैक्टिस का मैटर होता है। जैसे आई हैव डन मैटर्स ऑफ दीस सॉर्ट्स इन हरियाणा, सोनीपत में मैंने ऐसे मैटर्स किए हैं। तो वहां पे हमने बेल बॉन्ड्स कोर्ट में दिए थे 304A के। वहां पे हमें पुलिस स्टेशन से बेल नहीं मिलती। हालांकि बेल बहुत इजीली मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, जस्ट सफिशिएंट श्योरिटी दो एंड देन योर जॉब इज डन। बट दिल्ली के अंदर आपको पुलिस स्टेशन से मिल जाती है। सो ये स्टेट टू स्टेट ये प्रैक्टिस वेरी करती है एंड बस ये ऑफेंस अवेलेबल है। इसके लिए कन्विक्शन से पहले आपको जेल जाने की बेसिकली कोई जरूरत नहीं पड़ती जी सर। तो सर जैसे कि आपने बताया कि पुलिस स्टेशन से बेल मिलना ये भी एक बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है, तो किस तरीके से पुलिस स्टेशन से जो है बेल मिलती है, क्यों बेल मिलती है पुलिस स्टेशन से?
rather than court? ये बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया कि ऑफेंस बेलेबल है नेचर में, सो कोर्ट ये फील करती है कि पुलिस जो है वो अपने लेवल पे ही बेल ग्रांट कर दे। वहां पे भी आपको पूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती हैं, ऐसा नहीं होता। बेल बॉन्ड्स देने पड़ते हैं, आपको श्योरिटी देनी पड़ती है टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, एंड देन आपका मैटर इज देन टेकन टू द कोर्ट। सो सेम ही प्रोसेस है, इट्स जस्ट दैट नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर थोड़ा सा ये होता है कि बिकॉज दे आर हीनियस ऑफेंसेस, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस होते हैं वो बहुत हीनियस होते हैं, दे आर सीरियस इन नेचर, तो इसके लिए आपको कोर्ट की डिस्क्रिप्शन चाहिए। कोर्ट की डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज होकर ही आपको बेल मिल सकती है। बट जो स्टैच्यूट ने प्रोवाइड कर दिया है कि ऑफेंस बेलेबल है, तो उसमें डिस्क्रिप्शन की कहीं इतना ज्यादा स्कोप रहता नहीं है, एंड देन आपको ऑटोमेटिकली बेल मिल जाती है। यू गेट बेल एज अ मैटर ऑफ योर राइट, नॉट डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। ओके सर, तो सर किस तरीके से एक्यूज्ड अपने आप को इसमें जो है प्रोटेक्ट कर सकता है, यानी एक्यूज के डिफेंस क्या हो सकते हैं? एज ए लॉयर आपके क्या ओपिनियन है? सी इन तरीके के जो ऑफेंसेस होते हैं इनके अंदर काफी डिफेंस का स्कोप रहता है। एक चीज रहती है, आप यू कैन टेक द डिफेंस ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, मीनिंग देयर बाय कि जिस इंसान से कि हुआ एक्सीडेंट एंड जिस इंसान की डेथ हुई, सो दे बोथ वर एन इक्वल पार्टिसिपेंट टू दैट ऑफेंस। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं गाड़ी, सपोजिटली कोई इंसान गाड़ी बहुत तेज चला रहा है, ये उसकी नेग्लिजेंस है, बट कोई रॉन्ग साइड से बाइक पे आ रहा है, ये उसकी भी तो नेग्लिजेंस है। सो इन केसेस के अंदर ये होता है कि कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का फैक्टर आ जाता है, जिसमें दोनों की ही गलती थी, दोनों की नेग्लिजेंस थी, तो इससे पनिशमेंट काफी रिड्यूस्ड मिलती है, बिकॉज आधी गलती आप मान लो कि आपकी थी और आधी सामने वाले की थी। एक ये फैक्टर बहुत रिलेवेंट रहता है। एक ये चीज होती है कि जो स्टैच्यूट है, जो लॉ है, उसके इंग्रेडिएंट्स आपको पूरे करने पड़ते हैं, यू हैव टू फुलफिल द इंग्रेडिएंट्स। सो जनरल डिफेंस यही रहता है कि हमारा जो एक्ट था वो रैश और नेग्लिजेंट नहीं था। प्लेथोरा ऑफ जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट के जो रैशनेस और नेग्लिजेंस को डिफाइन करती हैं। सो हम ये डिफेंस लेते हैं कि हमारा एक्ट जो था वो रैश नहीं था, नेग्लिजेंस नहीं था। और इस तरीके से बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ एवरी केस हम डिफेंसेस लेते हैं अपना, एंड बहुत केस टू केस वेरी करता है डिफेंस। हर केस में, हर केस के फैक्ट्स अलग हैं, सिचुएशन अलग है, सर्कमस्टांसेस अलग हैं, एविडेंस अलग है, सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन दैट। तो इट्स डिपेंड ऑन द केस टू केस वेरी करती हैं चीजें। एब्सोल्युटली। ओके सर, सो ये जो सेक्शन जो है 279 एंड 337 एंड 338 आईपीसी, ये क्या है? किस तरीके के प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं? किस तरीके का ऑफेंस इसमें होते हैं? So basically 279 IPC is when you are driving in a public way and then you are driving in such a rash and negligent manner that in all probabilities it is likely to endanger human life or likely to cause hurt to someone. 337 भी इसी की एक एक्सटेंशन है, जिससे किसी को हर्ट कॉज हो जाए या कुछ हो जाए। 338 आईपीसी है कि इस एक्ट से किसी को ग्रीवियस हर्ट हो जाए। अब ग्रीवियस हर्ट जो है वो आईपीसी के अंदर 320 में डिफाइंड है, सेक्शन 320 में। तो उसके अलग अलग पैरामीटर्स है, इमैस्कुलेशन हो, इम्पेयरमेंट ऑफ आई साइट, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे हम ग्रीवियस हर्ट बोल सकते हैं। सो ये सेक्शंस एक एडिशनल सेक्शंस ही हैं, और यू कैन से नॉट एडिशनल बट पैरेलली ही ये यूज होते हैं लॉ के अंदर। कई कई ऑफेंसेस में एफआईआर 279 337 में होती है, कहीं कहीं 279 337 338 में भी हो जाती है जब ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, कहीं कहीं सिर्फ 279 304 में भी हो जाती है। सो मैटर वेरी करता है बेसिकली कि किस तरीके का ऑफेंस हुआ है। और इन 279 337 और 338 में डेथ नहीं होती है, बेसिकली हर्ट या ग्रीवियस हर्ट ही रहता है। सो अगर डेथ ही हो गई तो फिर 304 कम्स इनटू पिक्चर। ओके सर, तो सर ये जो केसेस होते हैं एमएससीटी के, ये क्या है? किस तरीके के केसेस इसमें आते हैं? ओके, सो MACT इज द मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल वेयर इन आप कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं। इट्स अ सिविल रेमेडी, एंड आपका जितना भी नुकसान हुआ, जो भी हुआ, आप उसके लिए कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हैं। जिसकी डेथ हो गई, सो उसकी पूरी फैमिली पीछे है, उसको कैसे सस्टेनेंस मिलेगी, क्या होगा। सो कोर्ट के बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, उसको टेक इनटू अकाउंट जो कोर्ट करती है कि कितनी लाइफ बची थी, कितना कमा रहा था, कितना क्वालिफाइड था, कितना कर सकता था। इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक, सो जस्ट ब्रीफली समिंग इट अप कि इट्स अ सिविल रेमेडी जहाँ पे आप कॉम्पोजिशन क्लेम कर सकते हैं ट्राइब्यूनल में, MACT ट्राइब्यूनल से। ओके सर, सर जो जब एमएससीटी की बात चल ही रही है, तो ये कस्टडी ऑफ व्हीकल्स या सुपुर्दारी ऑफ व्हीकल्स, ये क्या है?
ओके, सो कोई भी व्हीकल की अगर हम बात करें जो क्राइम में इन्वॉल्व होता है, तो पुलिस जनरली, जैसे आपने गाड़ी से अगर एक बाइक को हिट कर दिया, सो दोनों ही व्हीकल्स को अपनी कस्टडी में ले लेती है। अब उसका रीजन ये रहता है कि दिस हैज टू बी यूज्ड इन एज एविडेंस इन द मैटर, बिकॉज आपको मैकेनिकल इंस्पेक्शन की रिपोर्ट बनेगी, कितना डैमेज हुआ, कहाँ से डैमेज हुआ, कितने स्क्रैचेस आए, जो भी हुआ। सो पुलिस उसको जो अपनी कस्टडी में ले लेती है, जैसे ही एक्सीडेंट होता है दोनों ही गाड़ियों को अपनी कस्टडी में ले लेती है। बट अब ये पुलिस कस्टडी में तो आपके गाड़ियां खड़ी नहीं रहेंगी, बिकॉज आपको यू नीड देम फॉर योर डेली यूज एज वेल। सो हम सीआरपीसी के प्रोविजन में सुपरदारी एप्लीकेशन फाइल करते हैं, जहाँ पे हम कोर्ट से ये डिमांड करते हैं कि अब इस व्हीकल को पुलिस की जरूरत नहीं है, सो ये अब क्यों उनके पास खड़ा रहे। अल्टीमेटली ये हमें दे दिया जाए, मेरा व्हीकल वापस, माय व्हीकल शुड बी रिलीज्ड बैक टू मी बिकॉज आई हैव टू यूज इट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो हम एक सुपरदारी की एप्लीकेशन फाइल करते हैं, जिसके अंदर हम चाहते हैं कि कोर्ट हमारा व्हीकल हमें वापस दे दे। बट एक काफ कोर्ट इन एज अ मैटर ऑफ जनरल प्रैक्टिस काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है, जैसे आप इस व्हीकल को सेल ऑफ नहीं कर सकते जब तक ये केस डिस्पोज ऑफ नहीं होता। देन आपको सुपर्दगी नामा देना पड़ता है, आपको श्योरिटी देनी पड़ती है उस व्हीकल के अगेंस्ट। प्रैक्टिकली बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो सुपरदारी कोर्ट से मिलने के बाद फॉलो किए जाते हैं। ओके सर, तो जनरली जो एमएससीटी के जो केसेस होते हैं, इसमें जो क्लेम पास होता है वो किस एक अमाउंट में होगा, या कितना उसका वैल्यू रहेगा, ये किस तरीके से कैलकुलेट होगा, एंड कितना होता है जनरली, एंड कितना टाइम जो है इस तरह के केसेस को डिस्पोज होने में लगता है? मैम, टाइम, एज फार एज टाइम इज कंसर्न, तो आजकल तो कोर्ट्स इतने ओवरबर्डनड हैं कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि कोई केस कितने टाइम में डिसाइड होगा। बिकॉज कभी जज साहब छुट्टी पे चले जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, लॉयर्स नहीं आ पाते, एंड केसेस का बर्डन इतना है कोर्ट्स पे। कोविड की वजह से काम काफ़ी डिलेड रहा कि अब तो बहुत, मतलब डेट्स काफ़ी लंबी लंबी मिलती हैं। सो इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट मैं एक जनरल टाइम पीरियड आपको बता पाऊँ कि केसेस कितने टाइम में डिसाइड हो जाते हैं। And as far as the amount of compensation is concerned, so I just, as I told you beforehand, कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके खिलाफ क्लेम पास होना है, उसकी पेइंग कैपेसिटी क्या है, जिस जिस जो अफेक्टेड है, जो अग्रीव्ड है, उनकी क्या एज है, क्या थी, कितना डैमेज हुआ, कितना कॉम्पनसेशन देना चाहिए, कितने की ज़रूरत पड़ेगी, डेथ हो गई तो कितनी लाइफ बची थी, इस लाइफ पीरियड में वो कितना कमा लेता, खुद पे कितना खर्च करता, फैमिली को कितना देता। एंड ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे डिसाइड होता है, बट मेजरली यही सब फैक्टर्स रहते हैं कि जो मैंने आपको भी बताया। बिल्कुल सर। एंड सर, आपके जो व्यूज़ हैं हमारे व्यूअर्स के लिए काफ़ी वैल्यूएबल होने वाले हैं, और हमारे व्यूअर्स भी कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, सर डेफिनेटली आंसर देंगे। एंड सर, लास्ट में मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप कानून गुरु से काफ़ी लंबे टाइम से आप जुड़े हुए हैं, तो अब तक आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, एंड आपकी नज़र में इस तरह के प्लेटफॉर्म्स किस तरह से हेल्प करते हैं लिटिगेशन करियर को अपलिफ्ट करने में? I think the team of Kanun Gurus is doing a really, really good job, and a special mention about you. You have been taking a lot of pain for all this stuff and managing things quite well at your level. एंड जहाँ तक की बात है इस प्लेटफॉर्म की, तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स के, जैसे कि जैसे जिन जिन टॉपिक्स पे आपके जो गेस्ट स्पीकर्स हैं वो वीडियोस बना रहे हैं, सो इट इट अवेयर्स पीपल उन टॉपिक्स के बारे में कि इस टॉपिक पे क्या लॉ है, कैसा प्रोसीजर है। सो बेसिकली एक लेमैन टू अ लॉमैन की जर्नी, कानून गुरुज आई थिंक इज द ब्रिज। एंड most importantly, yes, of course, it's very helpful for people to get good lawyers, and for lawyers to get clients, of course, because as I mentioned that it's a bridge and connecting people to lawyers and lawyers to people. So it's a really, really great initiative, and hopefully looking forward to much more experience with Kanun Guru, and I would like to wish you all the best for that. Yes, sir. Thank you so much, sir, for your valuable time and your valuable views and your valuable answers. Thank you so much.